Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Welcome all of you. Today we continue to discuss to find missing frequency or unknown frequency with one more example. Based on the exercise number 14.1, today we discuss question number 4. Here n is equal to sigma fi. We get 125, x bar is equal to 22.12 and find the missing frequencies x and y. So dear students, लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते थे इसका मेथड देखा था। यहाँ पर हम आज दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करने जा रहे हैं x and y. So first of all we complete our frequency distribution table and one more things you remember, यहाँ पर हम टुडे आज दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक्स बार के कैलकुलेशन की जो मेथड है स्टेप डेविएशन, इसका यूज़ करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का, और इसके बेस पर हम ये पूरा सम अटेंड करेंगे और लास्ट में मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द बोर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हियर. फर्स्ट ऑफ द ऑल column number 1 shows classes 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 and 40 to 44 are our classes. Now from the second column frequencies present. Here the frequency 0 to 4 is 3, 5 to 9 is 8, 10 to 14 is equal to 12, 15 to 19 we don't know here, so it is the missing frequency we consider as x. Now for next one, 20 to 24 is 35, 25 to 29 is 21. Another class 30 to 34 has missing frequency, and here we consider y is a missing frequency. 35 to 39 go ahead 6 and 40 to 44 is equal to 2. From the column number 2, frequencies column, here 15 to 19 class has missing frequency we consider as x, and 30 to 34 class also missing the frequency we consider as y. Now sum of the frequencies 3 plus 8, first one of the sum of the numbers. So 3 plus 8 11 plus 12 23 plus 35 58 plus 21 79 plus 6 85 plus 2 87. तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कॉलम का प्लस करने के लिए हमने सबसे पहले न्यूमेरिकल सम्स किया, जिसमें हमने सब जो फिगर्स थे उसका प्लस कर दिया. वेरीफाई करते हैं. 3 plus 8 11 plus 12 23 plus 35 58 plus 21 79 plus 6 85 plus 2 87. और इसके अंदर जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, एक फ्रीक्वेंसी है 15 to 19 क्लास से रिलेटेड x और दूसरी है 30 to 34 क्लास से रिलेटेड y. इन दोनों को हम अलग से सेपरेटली प्लस करेंगे. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज n और सिग्मा fi इज इक्वल टू 87 प्लस x प्लस y मिलेगा. तो यहाँ पर हमारा सेकंड कॉलम कंप्लीट हुआ. नाउ गोइंग टू द थर्ड कॉलम, क्लास मार्क xi. फ्रॉम द फर्स्ट क्लास द एवरेज ऑफ द लिमिट्स, अपर लिमिट्स प्लस लोअर लिमिट, therefore divided by 2, 4 plus 0 4 divided by 2 is equal to 2. So class mark of the first class we get 2. Here also all the classes are same class size, and here the class size is equal to 5. Here the class size is equal to 5. That means h is equal to 5 here. So add 5 from the previous one and we get easily class mark. So 2 plus 5 is equal to 7, 7 plus 5 is equal to 12, 12 plus 5 is equal to 17, 17 plus 5 is equal to 22, 22 plus 5 27, 27 plus 5 32, 32 plus 5 37, and last 37 plus 5 is equal to 42. तो क्लास मार्क हमने फाइंड आउट किया. क्लास साइज को ईच एंड एवरी क्लास में प्लस करते जाते हुए यहाँ पर क्लास साइज था 5. अब चलते हैं कॉलम नंबर 4 की तरफ. नाउ once again let's see here, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने वाले हैं. सो वी फाइंड ui. फॉर्मूला ऑफ ui इज इक्वल टू xi माइनस a बाय h.
ये है हमारे SI और ये है एज्यूम मीन A इज इक्वल टू 17 जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो A इज इक्वल टू 17 इज अवर एज्यूम मीन एंड H मीन्स क्लास साइज is 5. We consider 5. 5 is our class size. Now substitute the value, appropriate value from the equation, and we get for the first class 2 minus 17 divided by 5, and we get minus 3. Consequently, for the second class we get minus 2. Another class to minus 1, and class which we select the assumed mean A is equal to 17. Here UI is equal to 0, and then after once again sequentially we find out our UI 22 minus 17 by 5 is equal to 1, then 2, then after 3, then after 4, and last 5. So here we get UI is equal to minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 in increasing orders, one by one. Now finally, for the last two column, FI UI. Here we find out the product of FI and UI respectively. Here FI is 3, minus 3 is the UI, and we get plus minus minus, 3 3s are 9. 8 multiplied by minus 2, we get minus 16. 12 multiplied by minus 1, we get minus 12. X multiplied by 0 is equal to 0. X multiplied by 0 is equal to 0. यहाँ पर एक बात आपको खास बतानी थी कि जब आपके पास दो अननोन फ्रीक्वेंसीज हो, when we get two unknown frequencies, हमें ऐसे हालत में assume mean ऐसे सिलेक्ट करना है जिससे कोई एक अननोन फ्रीक्वेंसी है उससे रिलेटेड हमारा FI UI 0 बने, और इसलिए हमने यहाँ पर 17 सिलेक्ट किया था क्योंकि इसके सामने अननोन फ्रीक्वेंसी X थी जिससे हमें FI UI 0 मिला। तो ये टिप्स आपको खास ध्यान रखनी है। ऐसे मामले में जब आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है आपको X एंड Y, तो आप X या Y से रिलेटेड XI को लेकर आप इसे एज्यूम मीन ऐसे कंसिडर करेंगे। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 35, 21 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 42, y मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, हियर वी राइट डाउन 3y actually, 3y, and 6 multiply 4 is equal to 24, 2 multiply 5 is equal to 10. Now last column is totally fill up. Now time to find out the sum of the FI UI. So first of all, sum of the negative integer minus 12 plus 16, 28 plus 9 minus 37, and sum of the positive integer also 35 plus 42, 77, 77 plus 24, 101, 101 plus 10, 111 plus 3y. So finally 111 plus 3y minus 37, and finally we get 74 plus 3y. 74 plus 3y. 74 plus 3y. Now time to find out missing frequency. Now time to missing frequency. यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो रहा है। प्लीज वन मोर टाइम लुकिंग केयरफुली। फिर से एक बार आप लेट्स सी द टेबल। फर्स्ट कॉलम शोज द क्लास, सेकंड कॉलम शोज द फ्रीक्वेंसीज, लास्ट में सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमने राइट डाउन की है अननोन फ्रीक्वेंसी को सेपरेटली प्लस करते हुए 87 प्लस x प्लस y। थर्ड कॉलम है वो हमें क्लास मार्क दिखा रही है जिसमें फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क फाइंड आउट करने के बाद जो हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज निकालते हुए क्लास मार्क फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद आपको हर एक में क्लास साइज को प्लस करते जाना है। यहाँ पर क्लास साइज हमारा 5 है और इसकी मदद से हमें क्लास मार्क xi मिले 1 by 1।
जिसको लेकर हमने स्टेप डेविएशन मेथड के लिए UI फाइंड आउट किया और UI हमें स्टेप बाय स्टेप इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला काउंटिंग नंबर्स के द्वारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक बात जो आपको मैंने खास बताई कि जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना हो तब आप एज्यूम मीन या तो x के पास या तो y के पास सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए हमने 17 को एज एज्यूम मीन सिलेक्ट किया था। लास्ट में हमने FI/UI फाइंड आउट किया। FI/UI फाइंड आउट करने के बाद हमने इसका सिंप्लीफिकेशन किया है और सिंप्लीफिकेशन करते हुए हमें जो कुछ भी मिला वो फाइनली हमें मिला है 74 + 3y। नाउ टाइम टू कैलकुलेशन। Look here once again, we get n is equal to sigma fi is equal to 125। हमें 125 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले से दिया हुआ था और हमने यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया फ्रीक्वेंसी टेबल में वहाँ पर हमें टोटल फ्रीक्वेंसी मिला है 87 + x + y। So we compare with the total frequency 125 is equal to 87 + x + y। Now 87 is transposing to the left hand side and subtract from 125 we get 125 minus 87 is equal to x plus y and we get equation x plus y is equal to 38। इसका मतलब ये हुआ कि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी x plus y इन दोनों का सम 38 होता है। ओके, नाउ फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पर मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला आएगा बाय द मेथड ऑफ द स्टेप डेविएशन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi इंटू h। इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फ्रॉम द डिटेल्स फ्रॉम द सम डिटेल्स में से। x बार यहाँ पर हमारे पास है 22.12, a इज इक्वल टू 17, सिग्मा fi di हमें मिला है 74 + 3y, सिग्मा fi मिला है 125 एंड h की वैल्यू मतलब कि क्लास साइज है 5। So putting all the values from the formula x bar is equal to a plus sigma fi di upon sigma fi into h. So we get 22.12 is equal to 17 plus 74 plus 3y upon 125 multiplied by 5 as a class size. Now 17 transporting to the left hand side and subtract from 22.12. So 22.12 minus 17 is equal to 74 plus 3y by 25. We get 5.12. We get 5.12. So 5.12 is equal to 74 plus 3y by 25. Now cross multiply 25 with 5.12 and we get finally 128. How? We get finally 128. So 25 plus 5.12. First of all, remove the decimal 5.12 में से पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं। सो 25 मल्टीप्लाई 512 डिवाइडेड बाय 100, 25 4 100 एंड देन आफ्टर 512 डिवाइडेड बाय 4 वी गेट 128। सो फाइनली वी गेट द इक्वेशन 128 इज इक्वल टू 74 + 3y। नाउ 74 इज अगेन ट्रांसपोजिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस फ्रॉम द 128। सो 3y इज इक्वल टू 128 minus 74 and get 54. 3y is equal to 54. Now divide both the side by 3 and we get y is equal to 18. So one of the missing frequency y is equal to 18. Now substitute from the equation x plus y is equal to 38. Here y is equal to 18. Therefore we get x plus 18 is equal to 38. Now 18 transporting to the right hand side and finally get x is equal to 38 minus 18 is equal to 12. So second missing frequency x is equal to 20. Then finally we get missing frequencies x is equal to 20 and y is equal to 18 here. I hope so you understand very well. ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप रेफरेंस बुक का यूज़ करो, एक्सरसाइज में जितने भी ऐसे सम्स हैं इसे ढूंढ निकालो और बार बार इसकी कैलकुलेशन करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो वी होप सो यू प्रैक्टिस वेरी वेल एंड स्ट्रॉन्ग साइड टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे
हमारे दूसरे भी जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट थे, मीन के बाद मोड और मीडियन, तो जब हमारे पास मोड और मीडियन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स दी हुई हो और उसके फ्रीक्वेंसी टेबल में भी इसी तरह से कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो रही है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हुए हम इसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू अगेन टुमारोज वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।